Yes, as we are starting with the HTML, actually our course name is Web Development. So in this web development, we are going to learn about the HTML, CSS, and JavaScript. Then after that, Node.js. Basically, these three are the important for us. In the web development, what is the meaning of the web development? Web development means we are going to develop the website. Okay. Abhi, what is the website? How we can say how we can define the website? Can you tell me, KK, what is website? Miss, it is like a page in the internet. Yes, it's the same as the book. In the book, we are having the information, but book is nothing without its pages. Means exactly information is stored or information is written on the pages, and book is the collection of the pages, right? Same here, website is the collection of web pages, and these web pages, what is the web page? Collection of information, collection of information. It can be in any form. Information like it can be text, it can be audio, video, images, and images. Okay. And so now our focus is to make this web page first of all. When we will make the more than one web pages, though it can be, we can say it is our website. And each and every website is having the unique URL. URL means uniform resource locator. Means it is the unique address. Yes. Unique address of your website or web page. Okay. So now here we are going to make the website by using the HTML. कैसा होता है कि तीन चीजें हैं. देखो, इन अ जनरल एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी को अगर हम डिफाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन विद आवर स्केलेटन. ठीक है, फिर स्केलेटन के ऊपर स्किन और उसके अंदर बाकी सब चीजें. ठीक है, देन अगर सिर्फ बॉडी बन जाए, ओनली स्केलेटन हो तो भी वर्क नहीं होगा. फिर स्केलेटन के ऊपर सब जो भी लगाना होगा वो सब लगा के भगवान जी ने भेज दिया और स्किन वगैरह लगा दी, सबको अलग अलग सुंदर सुंदर बना दिया, राइट. बट सिर्फ वो स्किन लगा के और वो फीचर्स बना करके इज नॉट कंप्लीट वर्क जब तक कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन नहीं डाला जाए, राइट. फंक्शनिंग तो ब्रेन से ही करेंगे ना, है ना. तो वी कैन से कि HTML इज द बेसिक स्ट्रक्चर. We can define it just like the our skeleton, है ना. फिर CSS is the beauty, our features. ठीक है. Okay. Then JavaScript will work as the brain. फंक्शनिंग जो प्रोवाइड करेंगे वो JavaScript से प्रोवाइड करेंगे. तो here we can define that HTML is used as a standard language for any website. बिना HTML के कोई वेबसाइट नहीं बनेगी, कोई भी वेबसाइट नहीं. ठीक है. HTML is hypertext markup language. ये अभी आगे बताते हैं. It acts as the static skeleton of the web application. It's a well standardized system. Yes, ऐसा होता है. इसके अंदर
HTML में। ओके, और HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? ये जो हम अभी लिखते हैं ना टेक्स्ट, जब मैं HTML बताऊंगी लिखेंगे तब मैं बताती हूँ, जो टैग बने होते हैं उनको हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। देन CSS। अब CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज द कास्केडिंग स्टाइल शीट। It is used to handle the presentation, means all about the appearance, all about the look of your website. It makes your website attractive and beautiful. Handle the presentation of the web page. It makes the website look attractive and beautiful. ये होता है CSS, और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, ठीक। देन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, बट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? उसको जावा और पाइथन वेल डिफाइंड लैंग्वेज है। और क्यों है वो वेल डिफाइंड? बिकॉज दीज टाइप ऑफ लैंग्वेज आर ऑलरेडी हैविंग देयर ओन कंपाइलर और द इंटरप्रेटर, ठीक। बट जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं, इट इज डिपेंडेंट लैंग्वेज। हम ऐसे अलग से जावास्क्रिप्ट चलाएंगे तो उसका ऐसा कुछ यूज नहीं आता, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द HTML, और इसको रन करने के लिए कोई कंपाइलर असेंबलर की जरूरत नहीं होती। ये वेब ब्राउजर पे रन होता है जब हम HTML यूज करते हैं तभी। दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इट इज यूजफुल टू प्रोवाइड। स्क्रिप्टिंग का मतलब कुछ फंक्शनिंग लिखना, ऐसा समझो। एंड इट्स गिविंग द डायनामिक look to our or dynamic functionality. Dynamic का मतलब होता है runtime execution of our website. So JavaScript allows scripting on your website and make it completely dynamic in nature. It provides a front end. आगे मैं बताऊंगी तुम्हें फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। Scripting of your website is a high level dynamic interpreted programming language. और इसमें वही सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट हम यूज करते हैं, लूप लगाते हैं, एरेज बनाते हैं, वो सब चीजें, जिससे कि हमारी वेबसाइट को फंक्शनिंग मिले। बट बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनामिक। एग्जैक्टली व्हाट इज द डायनामिक थिंग? देखो क्या होता है, ऐसा रहता है कि ये तो होता है एक सर्वर। अच्छा, इसके पहले ये जैसे कि ये कंप्यूटर है, और इसके पहले ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एनीथिंग, मींस वी कैन से इट इज अ क्लाइंट, Yes. है ना। एंड हियर इज द सर्वर, ठीक। लाइक जैसे मैंने गूगल से किया या फेसबुक से, जैसे हम फेसबुक से कोई रिक्वेस्ट भेजते तो आई एम द पर्सन हु इज द क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट इज गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट ने लिखा फेसबुक या गूगल या जो भी, ठीक है, फेसबुक की वेबसाइट उसने ओपन करना चाहा, तो फेसबुक के सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। इस फेसबुक का कुछ स्पेसिफिक IP एड्रेस होगा। वी आर नॉट गिविंग द IP एड्रेस, वी आर जस्ट राइटिंग द URL। URL इज द टेक्सचुअल फॉर्म, और फिर उसका IP एड्रेस मतलब कि उसका न्यूमेरिक फॉर्म,
जो कि कंप्यूटर को पता होता है. वी कैन नॉट एज द ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट लर्न दी क्या बोले बस न्यूमेरिक वैल्यूज. ठीक है, तो आईपी एड्रेस के पार्ट्स हम याद नहीं रख सकते ना, तो हम तो यूआरएल याद रखेंगे. ठीक है, जैसे facebook.com, google.com ऐसे. ओके, तो फिर वो यूआरएल हम याद नहीं रखते, सॉरी, हम सिर्फ यूआरएल याद रखते हैं. ठीक है, तो वो सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट, देन फिर वहां से सर्वर हमें सेंड करता है. अब सर्वर हमें क्या सेंड करता है, ये देखो कि जो भी हम रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हैं, तो रिक्वेस्ट हमारी सर्वर फुलफिल करता है, और वो जो फुलफिल करता है, जो हमें वेबसाइट भेजता है, जो इंफॉर्मेशन भेजता है, वो तीनों फॉर्मेट में होती है, HTML में, CSS में, और JS में जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो वो HTML में भी होती है, CSS में होती है. अगर HTML भेजेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा, CSS भेजेगा तो सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी, जावास्क्रिप्ट भेजेगा तभी फंक्शनलिटी आएगी. ठीक है, means यस all three works together, all these three structure, HTML, CSS and JavaScript, all three are working together. फिर वो वेबसाइट यहाँ पर मिल जाती है. यहाँ तक तो वो वेब पेज होता है स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन इसने भेजी वो यहाँ पे आ गई, और वो दैट इज. बट नाउ व्हाट इज द डायनामिक. डायनामिक मीन्स सपोज यहाँ पे हमें, जैसे हमने लॉग इन करना है, सपोज अ पर्सन इज अ न्यू फॉर द फेसबुक, इज मेकिंग द अकाउंट फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो जब अकाउंट फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे सम इंफॉर्मेशन हैज टू फिल, जैसे कि योर नेम एंड योर फोन नंबर, योर जीमेल एड्रेस, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हमको फिल करनी पड़ेगी, राइट? है ना, यस कितने भी, नॉट ओनली इन द फेसबुक. अगर हम एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं ऑन एनी वेबसाइट, हम IRCTC का फॉर्म भर रहे हैं टू बुक द रेलवे टिकट, तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फिल करते हैं ना. यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, देन वी आर क्लिकिंग ऑन द सबमिट, राइट? ऐसा ही होता है. सबमिट पे क्लिक करते हैं, देन एट दैट टाइम मीन्स क्लाइंट इज सेंडिंग द डेटा. कहाँ पर डेटा भेज रहे हैं, सर्वर पर. सर्वर ओके, और फिर तो इसको बोलते हैं डायनामिक. व्हेन माय डेटा is going to, or my data is traveling from the client computer to the server, or server is storing this data. And sometime ऐसा भी होता है, हम ID पासवर्ड भूल जाते हैं. ठीक है, और या फिर हमने जैसे ये हाफ फॉर्म फिल किया, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जब एडमिशन फिल कर रहे होते हैं, या फिर कंपटीशन के लिए जब हम कुछ फॉर्म फिल कर रहे होते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पर, तो हमने आधा फॉर्म फिल कर दिया होता है, फिर कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि डॉक्यूमेंट हमें बाद में अटैच करने होते हैं, तो वो फिर हम बाद में फिल करते हैं, आफ्टर 1 day और 2 days, ऐसा भी हम करते हैं. तो भी वो मेरा फॉर्म कहीं ना कहीं तो सेव होता है, वो डेटा मेरा सेव होता है सर्वर पर. And when the client is require this data, so client can request to the server, or server will send this data back to the client. तो ये जो डेटा का ट्रांसफर है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, दिस इज नॉन एज डायनामिक. मीन्स मेरी वेबसाइट अब डायनामिकली वर्क कर रही है. और नाउ इन दिस केस ऑफ द डायनामिक, व्हेन आई एम गोइंग टू गिव द एग्जीक्यूशन एट द रन टाइम टू द वेबसाइट, तो हमें वहां पे जरूरत पड़ती है बैक हैंड की. ओके, फ्रंट एंड मीन्स जिसे कि क्लाइंट यूज कर. देखो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, फ्रंट एंड मतलब जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, जिसे कि यूजर फेस कर रहा है, यूजर के सामने जो है, फ्रंट यस एंड. ओके, बैक एंड मीन्स जिसका यूजर को नहीं पता, दैट इज द बैक एंड, मीन्स बैक साइड पे जो वर्क कर रहा है. ठीक है, वो बैक एंड, और सामने वाला फ्रंट एंड. All these यस technical terms are there, but we have to focus on the practical things. ठीक है, तो अभी आई होप इट इज क्लियर कि जावा HTML क्या होगा, CSS क्या होगा, और जावास्क्रिप्ट क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टाइप HTML. ठीक है, then after that head, then title, TLE, then title close,
then head close, then body start, and then body close, and then HTML close. This is the basic structure of HTML, right? Basic structure means this root tag. टैग क्या होता है? ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स आर नोन एज टैग। ठीक है, इसको ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि क्या टैग, और जब हम काम करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली ये टर्म्स लर्न हो जाती है ना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ठीक है, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स को टैग बोलते हैं और इन्हें ही मार्कअप बोलते हैं। जो ये जो टेक्स्ट एनक्लोज्ड बिटवीन दी एंगुलर ब्रैकेट, ये है मार्कअप। मार्कअप मतलब कि इनको एग्जीक्यूट करवाएगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? अब यहाँ पे हमारा वेब ब्राउजर, जो भी वेब ब्राउजर है। आई रेकमेंड कि आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए, फायरफॉक्स भी ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत पुराना है, उसमें बहुत सारे टैग्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ठीक है, तो वैसे मोस्टली होगा सबके पास, अगर नहीं भी होगा तो भी अपग्रेड कर लेंगे गूगल क्रोम को। HTML इज अ रूट एलिमेंट, देन हेड, ये है हेड ओपन, और ये नीचे वाला हेड क्लोज। देखो जब मुझे क्लोज करना होता है ना, तो आई विल यूज दिस साइन, दिस इज नोन एज स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश से हम क्लोज करते हैं टैग को। अब दो तरीके के टैग होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी टैग। अब जैसे HTML ओपन है ना यहाँ पे, तो HTML क्लोज भी है। बॉडी भी ओपन है, बॉडी क्लोज भी है। टाइटल ओपन है, टाइटल क्लोज है। हेड ओपन है, हेड क्लोज है। ठीक है, तो ऑल दीज आर दी कंटेनर टैग, मीन्स जिनका की ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। इसको भी बहुत जानने की जरूरत नहीं है। जब हम यूज करेंगे ना VS कोड, तो हमें ये कुछ ओपन क्लोज नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हमें ओपन और क्लोज करके देता है। टाइटल के अंदर हम वो लिखते हैं, जैसे कि इट इज माई फर्स्ट पेज, मीन्स इट्स गोइंग टू बी शोन ऑन द टाइटल बार ऑफ माई वेब पेज। ठीक है, हेड इज द कंटेनर फॉर द टाइटल, देन द बॉडी, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करनी होती है, like this is my first page. Okay, अब हम नोटपैड में हैं, बिकॉज देन नोटपैड इज द टेक्सटुअल एडिटर, टेक्स्ट टाइप करता है ना। तो यहाँ पे सपोज मैंने सेव कर दिया इसे फाइल को, तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन देना पड़ेगा। हियर आई एम गिविंग फर्स्ट, ओके, देन डॉट, देखो यहाँ पे ध्यान से, हियर आई हैव मेंशन डॉट, then HTML, this is the extension। जैसे कि वर्ड की फाइल में एक्सटेंशन होता है .docx, वैसे। और वन मोर चेंज आई हैव टू डू, यहाँ पर ये एरो से आके ऑल फाइल्स। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव। अभी फाइल मेरी सेव हो गई। अब ये फाइल सेव हो गई है एज दी वेब पेज। अब मुझे इसे ओपन करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए जहां मैंने इसे सेव किया है ना, आई हैव टू गो देयर इन दिस फोल्डर आई हैव डन। अब देखो यहाँ पर सी दिस आइकॉन, ऊपर वाली फाइल का आइकन देखो, नीचे वाली फाइल का आइकन देखो। रुचिका, आर यू नोटिसिंग इट? ऊपर वाली फाइल का आइकन इट्स शोइंग लाइक दी नोटपैड, है ना, और ये वाला गूगल क्रोम का आइकन है। इट मीन्स इट इज माय वेब पेज। अब मैं इसे ओपन करूंगी, ये देखो, when I'm opening it, see this, see, notice on the title bar, this is your title bar and it is written first page, which I have written in the title tag। मीन्स जो भी मैं टाइटल टैग में लिखती हूँ वो मुझे एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले होता है, और जो भी मैं बॉडी में लिखती हूँ वो मुझे एज द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। देखो, दिस इज माय फर्स्ट पेज, राइट। मगर ये जमाना पुराना है, बहुत पुराना। हमें इतना गधे घोड़े वाला काम नहीं करना है। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करनी है, मेहनत ना दिमाग लगाने में करनी है। ठीक है, तो
हमें जहां मेहनत की जरूरत है ना वहीं मेहनत करनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम HTML के लिए नोटपैड यूज नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल VS कोड। हमारे कंप्यूटर पे हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक एडिटर। अब एडिटर क्या होता है, एडिटर इज प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी, ऐसा समझो, ठीक है। उस एडिटर में क्या होता है, जैसे कि जावा पढ़ते थे तुम लोग, जावा हम पढ़ते थे ब्लू जे पर, राइट। मुझे तो yes. ब्लू जे के ऊपर हम प्रोग्राम बनाते थे। जावा इज नॉट द ब्लू जे। जावा प्रोग्रामिंग तो नेटबिन पे भी हो जाएगी, VS कोड में भी हो जाएगी, किसी में भी हो जाएगी। बट ब्लू जे इज प्रोवाइडिंग यू द एनवायरमेंट टू क्रिएट द फाइल, टू क्रिएट द प्रोग्राम, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट एंड ऑल, ठीक है। सेम ऐसे ही हम VS कोड एडिटर लेंगे, उस एडिटर पे हम हमारा वेब पेज बनाया करेंगे और उस पर रन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम VS कोड इंस्टॉल कर लें।